Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue class 12th history, chapter 6, Bhakti Sufi tradition from 8th to 18th century. Dear student, as you know that this is very interesting and relevant chapter. In this chapter, we have to read about some important changes, social changes, religious changes, and the common faith and beliefs what were changed with the time and which affected society during 8th to 18th century. During that time, what was happening, we have to read all the points in this chapter. We also discuss about the different thinkers, teachers, saints, their verses, their sermons, their teachings, which is very fruitful and important for society. We have discussed all the points. Okay, my dear, I taught you in your previous class about the introduction of this chapter, where I was discussed that the Bhakti Sufi tradition, the meaning of these traditions and the name of your chapter, the Bhakti Sufi tradition, change in religious beliefs and devotional text, 8th to 18th century. This chapter name explain what we are going to read. कह रहा है कि उनके जो धार्मिक विश्वास है, जो उनकी अभिव्यक्ति, जो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति धारणा है, उनके संबंध में हम पढ़ने जाए। मैंने आपसे कहा था कि समाज के किसी स्पेसिफिक वर्ग को ही वेदों को सुनने का अधिकार था प्राचीन काल में भारत में। तो पुराण लिखे गए और पुराणों को सुनने का अधिकार विमेन्स और शूद्रों को दिया गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि भक्ति ट्रेडिशंस क्यों इमर्ज हुई इंडिया में, उसके पीछे के कारण क्या थे, उन चीज़ों को बताते हुए मैंने आपसे कहा था कि 8th to 18th century, especially 8th to 16th century, that was the time when the various invasion happened on India. The various invaders who attacked on India, and they tried to what? They tried to impose their own culture. They also tried to disturb the Indian culture and religion, Islamic culture, that was totally new culture. Here one more thing which is very important, which I want to share with you, that during ancient time, the various invaders attacked on India, like Kusanas, Sakas, Palau, Yavans. But when they reached India, they were very much influenced the Brahmanical religion and the Brahmanical gods. They adopted our religions. They became Bhagavad, they became Vaishnava, they became Saiva. What happened with the Kusana dynasties? The Kusana dynasties, their title that was Maheswaras, Iswaras, Maheswaras, सर्वलोगस, बिंब कटभिषस। कहता है कि बिंब कटभिषस अपनी एक टाइटल लेता है जो कहता है वहाँ पे कि मैं क्या हूँ, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर का मैं भक्त बिंब कटभिषस। फिर बाद में भूविष्क और वासिष्ठी के समय तक आते आते इवन कनिष्क के समय में भी वो हिंदू देवी देवताओं के साथ बौद्धों को भी, गौतम बुद्ध को भी महत्वपूर्ण स्थान दे देता है। What I want to say you, my dear, I want to tell you that कि भारत में प्राचीन काल में आए हुए जो राजा थे, उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया, अपने को उसमें पूरी तरीके से व्यवस्थित किया। लेकिन अंग्रेजों के पहले जब भारत पे तुर्कों का आक्रमण हुआ, तो तुर्क जब भारत में आए तो तुर्कों ने अपने साथ एक नई संस्कृति लेके आई, इस्लाम लेके आया, और इस्लाम की पूरी संस्कृति हमारे संस्कृति से अलग थी। ये अपने में यूनिक और महत्वपूर्ण बात है। आई होप यू आर getting understand. First thing. Second thing is that here one question should be arise in your mind, that why bhakti
Bhakti tradition emerged during that time. The second reason that was during that time, 8th to 18th century, there were the numerous castes, there were the numerous class, social stratifications, बहुत सारे सामाजिक स्तरीकरण कर दिए गए। जंगलों में रहने वाले लोग, गांवों में रहने वाले लोग, नीची जाति के लोग, महिलाएं, विमेन्स, they didn't enjoy the similar equal right as like upper class people. So that's why which type of arrangement provide for them, किस तरीके का व्यवस्था उनके साथ की गई। No doubt, as I inform you that पुराण that is very important, पुराणों को उनके लिए लिखा गया, पुराण को। यहीं पे एक अच्छा स्टडी है, आपके बुक में है, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, इस हाइपोथेसिस को देने वाले जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या किया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने 20th सेंचुरी की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। कब? 12th सेंचुरी सी का जो समाज था उसका उन्होंने अध्ययन किया। 12th सेंचुरी के सोशल स्टेटस का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि समाज में दो तरह की मान्यताएं हैं, एक ग्रेट ट्रेडिशन की और दूसरा लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट ऑन द बिहाफ ऑफ द रिसर्च वर्क, देयर स्टडी, इट वाज वेरी क्लियर दैट ड्यूरिंग 12th century AD in India there are two types of group who enjoy the two type of religious faith and beliefs. The one was, he nominated that great traditions, second they call little tradition. एक को उन्होंने नाम दिया ग्रेट ट्रेडिशन और दूसरे को नाम दिया लिटिल ट्रेडिशन। ओके, अब ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन की क्या स्पेशलिटी थी, आइए पहले नॉर्मल भाषा में समझते हैं। बुक में जो लिखा है वो देखते हैं। आपका बुक कहता है क्लियरली कि द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वर coined by sociologist named Robert Redfield in the 20th century. Sorry, इसको 20th कर लीजिए क्योंकि एकदम फाइनल स्टडी उनकी जब आई 20th century. Okay, what I am saying, 20th century and 12th century, here I given the two dates. Without any hesitation, first you have to understand कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने स्टडीज शुरू कहाँ से की? 8th सेंचुरी से टू 18th सेंचुरी एडी। इसके बीच का हमको भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चैप्टर को पढ़ना है। रॉबर्ट रेडफील्ड आए कब? 20th सेंचुरी पे। ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने जो स्टडी की वो कब किया? वो 20th सेंचुरी में किया, 20वीं सदी में उन्होंने स्टडी किया। किस समाज पे किया उन्होंने? 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच की सोसाइटी को उन्होंने किया। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा 12th सेंचुरी 20th सेंचुरी। 12th सेंचुरी वो टाइम था जब भारत में सल्तनत की स्थापना हो रही थी। 11th-12th सेंचुरी 1206। 13th century especially, 13th century that was time when the Sultanate was established 1206 में।
1206 में, या 1192 में अगर हम चले, 1192, 91-92, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और जब मोहम्मद गोरी का भारत पे आक्रमण होता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करते हैं और बाद में तुर्कों के आक्रमण के बाद यहाँ सत्ता स्थापित होती है और ये परंपरा चलती है। तो थोड़ी देर के लिए हम 12th सेंचुरी भी कह सकते हो, 13th सेंचुरी भी कह सकते हैं, क्योंकि 12th सेंचुरी में भले ही तुर्कों का भारत में पूरी तरीके से स्थापना न हुई हो, लेकिन 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वो अपने को भारत में स्टेबल कर दिए थे, सल्तनत की स्थापना हो गई थी। तो 13th सेंचुरी, 12th वाली, इसीलिए इसके और इसके बीच एक नई कल्चर क्या आ रही है इंडिया में, इस्लामिक कल्चर आ रही है। और 18th सेंचुरी तक आते आते हमारे अंदर क्रिश्चियनिटी भी आ चुकी थी, हमारे अंदर सिख धर्म भी आ चुका था। तो इन धर्मों के कारण भारत में तमाम तरीके के धार्मिक विश्वासों, मत मतांतरों में परिवर्तन दिखाई देता है। ओके, आई होप you getting understand that what I am saying. Okay, let us come and try to understand the topic. The term great and little traditions were coined by sociologist named Robert Redfield in the 20th century to describe the cultural practices of peasants societies. He found that peasants observed the rituals and customs. They emanate from the dominant social categories, including the priests and rulers. These he classified as a part of a great tradition. At the same time, peasants also followed local practices that did not necessarily correspond with those of the great tradition. These included within the categories of the little tradition. He also noticed that both great and little traditions change over time through the process of the interaction. While scholars accept the significance of these categories and process, they are often uncomfortable with the hierarchy suggested by the terms great and little. The use of the quotation mark for great and little is one way of the including this. My dear, I hope you are getting understand that what I am saying here. That the word great tradition and little tradition first time used by Robert Redfield in 20th century. He studied on the 8th to 18th century society. He found that society was divided into two parts on the behalf of their faith and their religious belief and their what? The ritual practices. Great tradition and little tradition. Great traditions within the upper class of the society, little traditions within the lower class of the society. Their deities, their god, they were totally different from the great tradition. And great traditions, god, and they were also different. But here the main thing is that the little traditions people, they interact with the great traditions people, and without hesitation, great traditions people accepted the little traditions रिलीजियस फेथ एंड बिलीव्स. उनके धार्मिक विश्वासों को भी क्या किया, इन लोगों ने माना. ग्रेट ट्रेडिशंस के लोगों ने, स्पेशली ग्रेट ट्रेडिशंस के लोगों ने लिटिल ट्रेडिशंस के उन विश्वासों को स्वीकार किया जो वो लोग अपने में क्या करते थे, उनको उनके लिए सम्माननीय थे, वो उनकी पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे. व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, कि समाज के दोनों वर्गों के लोग इन चीज़ों को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर रहे थे और साथ ही साथ उन चीज़ों को एक साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ पे धार्मिकता के आधार पे कोई कैटेगराइजेशन ना हो. इट मीन्स कि जो अपर क्लास के लोग थे उन्होंने लोअर क्लास के देवी देवताओं को भी उसी रूप में एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया जिस तरह वो अपने को स्वीकार करते थे. उन्होंने ठीक उसी तरह स्वीकार किया जिस तरह से उनके देवी देवता थे, उन्होंने लिटिल ट्रेडिशंस के देवताओं को भी स्वीकार किया. और इससे और विचित्र बात क्या है, उन्होंने तांत्रिक पूजा पद्धतियों को भी एक नए तरीके से एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया. ये एक महत्वपूर्ण बात थी. मैंने आपको ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के बारे में मैंने आपसे कहा.
मैंने आपसे कहा कि ये ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा भारत के पीजेंट्री सोसाइटी को देख करके, उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ को देख करके उन्होंने इसका नाम इस तरह से रखा। उन्होंने देखा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही जो पीजेंट्री क्लास थी, अन्य उनकी अपनी धार्मिक विश्वास थी, लोकाचारों का भी वो साथ साथ पालन करते थे। तो इस महान परिपाटी को जो अपर क्लास के लोगों की विशेषताओं से भिन्न थी, उसको उन्होंने लिटिल ट्रेडिशन का नाम दिया। तो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशंस के नाम उन्होंने दे दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इन दोनों का पारस्परिक आदान प्रदान हुआ। इनके अपने विश्वास, इनके अपने धर्म, इनके अपने देवी देवताओं का आदान प्रदान एक दूसरे ने किया। और जैसा मैंने कहा, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, दोनों ही वर्गों के लोगों ने एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों, मतों और उनके जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी उसको उन लोगों ने अडॉप्ट किया। हालांकि जो स्कॉलर हैं रॉबर्ट रेडफील्ड इन प्रक्रियाओं, वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इस शब्द में जो हायरार्किकल है, जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है, उनकी अवमानना करते हैं। उसे लक्षित करने के लिए, उसको बताने के लिए ये जो शब्द लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन उन्होंने रखा, वो ये नहीं शो करता है कि ये क्या, ये हायरार्किकल है कि ग्रेट ट्रेडिशन बड़ा है, लिटिल ट्रेडिशन छोटा है। दीज वर्ड नॉट, ग्रेट एंड लिटिल वर्ड नॉट एक्सप्लेन कि ये लिटिल ट्रेडिशन छोटा है और ग्रेट ट्रेडिशन बड़ा है। उन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने 20वीं सेंचुरी में जो स्टडी की, उस स्टडी में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि समाज का जो दो वर्ग हैं, दोनों के अपने अपने मत और मतपंथ विश्वास हैं, उनके अपने धार्मिक क्रियाकलाप हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में जो लिटिल ट्रेडिशंस के लोग हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशन से इंटरेक्शन के बाद ग्रेट ट्रेडिशन की मान्यताओं को अडॉप्ट कर लेते हैं। और कुछ ऐसा ही अपर ट्रेडिशन या ग्रेट ट्रेडिशन के लोगों में भी दिखाई देता है। ग्रेट ट्रेडिशन के लोग भी धार्मिक विश्वास जो लिटिल ट्रेडिशंस के थे वो उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी को एक टॉपिक में आपको मैंने समझाया था, द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। यही पे मैंने आपको एक टॉपिक से जोड़ा था, दी इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। अब इस टॉपिक को इस आधार पे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये इंटीग्रेट हो रही है, जुड़ रही है, समन्वयित हो रही है, एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जा रही है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस टॉपिक इन योर प्रीवियस क्लास। मैंने पुरानी क्लास में इन चीज़ों को आपको पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि हिस्टोरियंस हु have tried to understand these developments suggested that there were a least two process at work. One was the process of the dismantling Brahmanical ideas. This is exemplified by the composition, compilation and preservation of Puranic texts in a simple Sanskrit versus explicitly meant to be accessible for women and Sudras who were generally excluded from the Vedic learning. At the same time, there was a second process at work, that are the Brahman accepting the reworking the beliefs and practices of these and other social categories. In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between when the sociologists have described as the great Sanskritic Puranic traditions and the little traditions throughout the land. One of the most striking examples of the process is evident at Puri, Orissa, where the principal deity was identified by the 12th century as Jagannath. Jagannath literally meaning Lord of the world, a form of the Vishnu. This is the incarnation of Vishnu. We can say कि हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ जो लॉर्ड ऑफ विष्णु थे, उनके कई स्वरूपों में जो एक स्वरूप है, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट। भारत के विभिन्न भागों में भगवान विष्णु के जो स्वरूप है
उनसे जगन्नाथ का स्वरूप टोटली डिफरेंट है. द deities the represented in the very different way. In this instance, local deities whose image and the continuous to be made a wood by local tribes specialist was recognized as a form of the Vishnu. At the same time, Vishnu was visualized in a way that was very different from the other part of the country. Such instances of the integration are evident almost goddess cults as well. Worship of the goddess often simply in the form of a stone seemed to others was eventually widespread. These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them with an identify as a wife of Puranic principal male deities. Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu, in other instance with Parvati and the wife of Shiva. My dear, that is what I have taught you in your previous class. These points were discussed by me in your previous class. So I think in short, I remind you that what I taught you in previous class. एक छोटी सी चीज़ों में बता दे रहा हूँ. मैंने आपसे क्लास की शुरुआत में भी कहा, एक बार फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि जो ये मान्यताएं थी, जो ये विश्वास थे, इतिहासकारों ने इस विकास को समझने का प्रयास किया. उन्होंने ये सुझाव दिया कि कम से कम भारत में दो तरह के प्रोसेस वर्क कर रहे थे, दो तरह के प्रोसेस, दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी. एक प्रोसेस के थ्रू ब्राह्मण विचारधारा का प्रचार कर रही थी. जो एक प्रोसेस था उसमें ब्राह्मणिकल जो फेथ थे, बिलीफ थी, उनका विचार, उनको प्रचारित किया जाता था. वो लोग कई सारे पौराणिक ग्रंथों की रचना कर रहे थे, संकलन कर रहे थे, उनको परिरक्षण, उनको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और उनको रीराइट करने का काम कर रहे थे. साथ ही साथ मैंने आपसे कहा कि दूसरी तरफ जो दूसरी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत एक नई प्रक्रिया जिसमें शूद्रों और महिलाओं को भी धर्म में कुछ धार्मिक सुविधाएं देने की बात थी. मेरे कहने का समझ, जैसे जो ट्राइबल पीपल थे, जो लोकल पीपल थे, जो नीची जाति के लोग थे, उन्हें पुराणों को सुनने का अधिकार नहीं, सॉरी, उन्हें वेदों को सुनने का अधिकार नहीं था. तो ब्राह्मणों ने उनके लिए वेद की जगह पुराण को लिखा. अब वो पुराणों को सुन सकते थे, पुराणों का गायन, वाचन और क्या कहते हैं, श्रवण, तीनों काम कर सकते थे, लिसन कर सकते थे, लर्निंग कर सकते थे. ये चीज़ें मैंने आपको बताई. मैंने कहा कि जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्री और शूद्र थे, वो उनके लिए पुराणिक ट्रेडिशंस की चीज़ें बनाई गई थी. इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्गों के आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना, उसे एक नया रूप प्रदान करना. वस्तु समाजशास्त्री का यह मानना था, सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा लिटिल ट्रेडिशन के बीच क्या है, डायलॉग के रिजल्ट के फलस्वरूप दिखाई देती है. फिर वो कहते हैं इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण है उड़ीसा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर. पुरी का इस जगन्नाथ मंदिर की परिभाषा मैंने आपसे कहा कि इसकी अगर अर्थ निकालेंगे तो जगत के नाथ हैं, पूरे दुनिया के वो नाथ हैं, ईश्वर हैं. कहता है कि यदि आप जगन्नाथ मंदिर को देखें, जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियाँ स्थापित हैं उनको देखें तो इन मूर्तियों में आप क्या दे सकते हैं, डिफरेंसेस दे सकते हैं, उनमें बड़ा अंतर देख सकते हैं. वो कहते हैं कि भिन्न भिन्न तरीक़ों से बनाए गए चीज़ें जो थी, प्रतिमाएं, भारत के विभिन्न भागों में जो विष्णु की प्रतिमाएं हैं उनसे टोटली ये भिन्न हैं, उनसे ये अलग हैं. जो जगन्नाथ मंदिर की लकड़ी की बनी प्रतिमा है वो भारत में विष्णु की बनी हुई समस्त प्रतिमाओं से, समस्त मूर्तियों से आपको अलग दिखाई देंगी. इसके पीछे का कारण क्या है? तो कहते हैं कि जो देवता हैं उनको बनाने का काम कौन कर रहा है? तो कहते हैं कि उस प्रतिमा को पहले भी और आज भी वहाँ के एक लोकल ट्राइबल है, उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा इस प्रतिमा को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है. विष्णु के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया. विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में एकदम अलग है. मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि आज अगर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा चल रही है, रथ यात्रा इस समय शुरुआत है, ये इत्तेफाक है कि हम इसमें भक्ति सुखी ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं और जगन्नाथपुरी का जिक्र कर रहे हैं. रथ यात्रा इस समय भगवान विष्णु की उड़ीसा में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. कोविड के चलते
गवर्नमेंट ने उस पर तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लेकिन फिर भी यात्रा, ये उत्सव, ये फेस्टिवल पूरी विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रथ यात्रा पूरी दुनिया के सबसे बड़े मेलों में, फेस्टिवल्स में काउंट किया जाता है, फेयर्स में काउंट किया जाता है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की बात मैंने की, वहाँ मैंने कहा कि समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर के पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी, पार्वती भगवान शिव की पत्नी। मेरे कहने का सेंस इतना ही है, इस तरह से जो ये सोच आई परंपराओं में, जो मेल डिटी के साथ फीमेल डिटी को रखा गया, ये अद्भुत था और दोनों ने दूसरे की बातों को एक्सेप्ट किया। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। माय डियर, हियर I want to explain every and each topic very clearly. It is your duty that you have to watch this video and क्या हो आप इसका लाभ है। It is only for you. आप इसको देखें, समझें। इन चीज़ों को जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, when you will not try, then you will not what easily understand that what we are saying. इस टॉपिक इतना आसान है, इतना इजी है, उतना ही इस टॉपिक पे आपको समझ, अगर नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको उतनी ही कठिन लगेगी। यार व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिफिकल्ट एंड इजी, डू यू नो? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट डिफिकल्ट, व्हाट इज डिफिकल्ट एंड इजी, व्हाट इज इजी। इजी क्या है और डिफिकल्ट क्या है, इन चीज़ों को समझने के लिए आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि डिफ़िकल्ट वो होता है जो आपको नहीं आता और इजी वो होता है जो आपको आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या आपको आता है और क्या आपको नहीं आता, और क्यों आपको आता है और क्यों आपको नहीं आता। तो पहली चीज़, क्यों आपको आता है और क्यों आपको नहीं आता, ये चीज़ जान लें। क्यों आपको आता है? क्योंकि आप उस विषय के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस जो स्पेसिफिक थिंग है उसके प्रति आपका इंटरेस्ट है, आपके अंदर उसको जानने की क्यूरियोसिटी है, तो आप उसको मन से पढ़ते हैं, तब वो आपको आ जाता है। आपकी क्यूरियोसिटी उसके प्रति नहीं है तो आपको वो चीज़ें नहीं आती। ठीक ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूँ, ये आप मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस लगाइए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। यदि आपको फार्मूला आ गए तो आपने क्वेश्चन लगा दिया तो आपको वो आ गया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अगर आप फार्मूला नहीं आया आपको, तो मैथ आपको लगाने का मन नहीं करता, आप मैथ की किताब को किनारे रख देते हैं, उसकी जगह आप कोई और विषय पढ़ने लगते हैं, तो वो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं। नॉवेल पढ़ने लगते हैं, नॉवेल की चीज़ों को आप कभी नहीं भूलते। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में आपको एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद भी पूछा जाता है कि इस मूवी को आपने देखा है, तो आप कहते हैं हाँ। आप इसकी स्टोरी को बता दीजिए तो आप स्टोरी बता देते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कभी कभी आप जो उसमें पार्ट प्ले करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस हैं, या साइड एक्टर और साइड एक्ट्रेस हैं, विलेन हैं, उनके नाम भी आपको हूबहू याद रहते हैं। और कभी कभी तो आप कई सारे मूवी के नाम, उनके एक्टिंग, सब चीज़ों को आप, कहानी, स्टोरी, सब को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ आपको जब अपने सब्जेक्ट से करना होता है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को उतना टाइम नहीं देते, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को उतने ध्यान से आप उसको नहीं पढ़ते। आप जब मूवी देखते हैं तो आप उसके प्रति जो आपका कंसंट्रेशन लेवल होता है, वो कंसंट्रेशन लेवल आपका आपके स्टडी के टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम होती है। जब आप उस लर्निंग प्रोसेस में अपने कंसंट्रेशन लेवल को उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे आपको आप मूवी देखते समय करते हैं, या वीडियो गेम खेलते समय आप करते हैं, या इस तरह की जो अन्य एक्टिविटीज़ में आप अपने को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पूरे मनोयोग से आप करते हैं, तो आपका उसमें काफ़ी अच्छा मन लगता है। और जब आप सब्जेक्ट में आते हैं
तो आप उसको पार्ट टाइम या एक हल्के में करते हैं, इसलिए आप अच्छा प्रोफाइल नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट और इजी में बड़ा अंतर। डिफ़िकल्ट की डिफिनेशन और इजी की डिफिनेशन में बेसिक डिफरेंसेस यही है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंसेस हैं। गुड बाय।